हमारे आज के मुख्य अतिथि आ चुके हैं। इंतजार की घड़ी हम सभी की समाप्त हो चुकी है। वो पल, वो समय हम सभी के समक्ष है जिसका इंतजार हम सब ने किया है, पूरी शाम किया है, और खासकर बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज की इस परिवार ने इस शाम का न जाने कब से इंतजार किया है। तो हमारे बीच यहाँ हमारे मुख्य अतिथि श्री परसोत्तम रूपाला जी आ चुके हैं, और इसके लिए और इसी के साथ यहाँ स्टेज पर चढ़ते हुए हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच, तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें यहाँ स्टेज पर एक बार फिर से। Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे बीच हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री परसोत्तम रूपाला जी आ चुके हैं, और इसी के साथ यहाँ हमारे बीच मुख्य अतिथि जो आ चुके हैं यहाँ स्टेज पर, लेकिन उनके साथ यहाँ श्री धर्मपाल सिंह जी भी मौजूद हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, डॉक्टर डीसी वर्मा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मीरगंज। also Dr. MP Arya ji MLA are right here with us on stage. We have Shri Santosh Gangwar ji, member of Parliament Bareilly. We have Mr. Manoj Kumar ji, director BL Agro Industries. We have Mr. Nune Balraji, Central Coordinator BJP. We also have Mr. Elson de Barros Gomes, Honorable Council India and Brazil. We also have Mr. Alexandros Bardos, Mr. Consular Embassy of Greece with us. एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों पर पदार्पण है, ज्योत से ज्योत सजी सज गया इस उद्योग का पदार्पण है, झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, इस उद्योग की नींव रखने वालों को मेरा सत सत अभिनंदन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा गणी, जय श्री कृष्णा, जय गणेशा, राधे राधे। मैं आप सभी की सूत्रधार कशिश शर्मा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। Yes, ladies and gentlemen, a very good evening and welcome to this very, very special evening. My name is MC Lakozi and I'm your host for today. We are here to celebrate the past, to enjoy the present and to look forward to the future. We are here to celebrate the continuous and dedicated efforts put in by each and every one of you to make this company to what it is today. We stand here at a fabulous occasion of celebrating Barte Kadam, the foundation day of BL Agro Industries Limited. This wouldn't have been possible without each and one of you. So first of all, before we go any further, I want you to have a big smile on your face and put your hands together. So ladies and gentlemen, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगी यहाँ बीएल एग्रो इंडस्ट्री से जुड़े हर एक लोग जो मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दें बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज के आज के इस Yes, ladies and gentlemen, आपके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, अपने आप के लिए। You are our family at BL Agro Industries Limited. Ladies and gentlemen, you are the real champion of this company and you are the reason we stand here marking this amazing occasion. So ladies and gentlemen, BL Agro Industry जो है इसके बारे में हम सभी को काफ़ी हद तक पता है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि BL Agro Industries Limited जो है वो आज के समय में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई FMCG कंपनी है, और इतना ही नहीं बल्कि BL Agro Industries Limited की नींव को लगभग आधी सदी से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, और इनकी नींव जो है वो रखी गई थी श्री किशन लाल खंडेलवाल जी और श्री बिशन लाल खंडेलवाल जी द्वारा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे लोगों से कि एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दें। Yes, ladies and gentlemen, before starting the evening, let me first acknowledge the presence of some of our eminent guests. I would like to extend a warm welcome to our chief guest, Shri Parshottam Rupala ji, Union Cabinet Minister, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, who graciously accepted our invitation to be with us this evening. Also like to extend a warm welcome to our very special guest, Mr. Alexandros Badouris, Minister Consular Embassy of Greece, Dr. Elson de Barros Gomes, Junior Honorary Consul General of India, Brazil, Shri Nune Balrajji, Central Coordinator, BJP. Yes, ladies and gentlemen, though it is very difficult to sum up everything about BL Agro Industries Limited in few words,
I would like to take a chance and narrate you about what BL Agro Industry Limited as the company is. जैसे कि मैंने कुछ समय पहले बताया कि हमारी इंडस्ट्री की नींव जो है वो श्री कृष्णलाल खंडेलवाल जी और श्री बिशनलाल खंडेलवाल जी द्वारा रखी गई थी और इस नींव को रखे हुए लगभग आधी सदी से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। पर व्यवसाय को वास्तविक बढ़ावा तब मिला जब श्री घनश्याम खंडेलवाल जी ने 1976 में पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने का निर्णय लिया और इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री घनश्याम खंडेलवाल जी के लिए। Yes, ladies and gentlemen, our company's tagline is pure perfection, goodness of nature blended with the right technology. BL Agro management team strongly believes that the trust and respect from the community are the foundation of success and growth. With a wide range of 75 plus products, that includes pulses, cereals, dry fruit, ready-to-cook foods, papad, achar, murabba, spices, edible oils, and more. BL Agro has the largest distribution network amongst all the branded edible oils and food products player in the country with over 150,000 retailers across 200 cities in 13 states in India. Uttar Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Haryana, Punjab, Rajasthan, Assam, Uttaranchal Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Jammu and Nepal. और इतना ही नहीं बल्कि BL एग्रो इंडस्ट्रीज में देश भर में अपनी पहचान बनाते हुए अब इन्होंने ये निर्णय लिया है कि देश के बाहर विश्व में अलग अलग देशों में इन्होंने ये संघर्ष किया है, अपने में ये एक नए स्कीम के साथ आए कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विश्व के अलग अलग देशों तक पहुंचना है। Yes, ladies and gentlemen, now we continue with this evening. Light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness, similarly, blessing in our life with prosperity and happiness. So friends, without any further delay, let's begin the evening with the inaugural lighting of the lamp. And I'd like to request the following to please head over to the lamp as I call their names. Please put your hands together as I invite our admirable Mr. Ghanshyam Ji Khandelwal, Chairman BL Agro Industries Limited, to accompany highly regarded Chief Guest Shri Purushottam Rupala Ji, Union Cabinet Minister Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, and also our special guest to kindly illuminate this lamp lighting. And also I'd like to welcome all the dignitaries for the same, Mr. Alexandros Badouris, Mr. Dr. Elson De Barros Gomes Jr., Shri Nuneji Balaji, Central Coordinator, BJP. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दीप प्रज्वलित करते हैं हम, वैसे ही यहाँ दीप प्रज्वलित के साथ आज के शाम की शुभ आरंभ हो रही है। जैसा कि ये श्लोक भी अक्सर पढ़ा जाता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशया दीपा ज्योतिर नमोस्तुति, which essentially means I bow to you, O light, which brings to us prosperity, abundance, wealth, good health and destruction of enemies intellect. इसी के साथ दीप प्रज्वलन हो चुकी है और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों से कि जोरदार तालियों के साथ Yes, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां होनी चाहिए. A huge round of applause, ladies and gentlemen, as our dignitaries light the traditional lamp. भाई तालियों में थोड़ी सी कमी है बरेली, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. Come on, ये हुई ना बात. सो इसी के साथ दीप प्रज्वलन हो चुकी है और आज के शाम की शुभ आरंभ भी हो चुकी है। बढ़ेंगे आगे जहां हम सम्मानित करेंगे हमारे आज के उपस्थित सारे अतिथिगणों को। And now, ladies and gentlemen, it's time to proceed with felicitation. May I request Shri Ghanshyam Khandelwal Ji, Chairman BL Agro Industries Limited, to greet our guest with a bouquet, and Shri Ashish Khandelwal Ji, Managing Director BL Agro Industries Limited, to present mementos. And to receive, I'd like to request our Honorable Chief Guest, Mr. Purushottam Rupala Ji, Central Cabinet Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. और इसी के साथ पुष्प गुच्छ से सम्मानित करते हुए यहाँ स्टेज पर हमारे मुख्य अतिथि श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी का, और साथ ही प्रतीक चिन्ह देते हुए आज के शाम को और भी ज्यादा खास और यादगार बनाते हुए. For next to receive
Mr. Elson Barros Gomes Jr., Honorary Consul, India, Brazil. भाई साथ साथ तालियां होनी चाहिए, ladies and gentlemen. और साथ ही पुष्प गुच्छ के साथ साथ प्रतीक चिन्ह के साथ सम्मानित करते हुए हमारे अतिथि गणों को यहाँ स्टेज पर. Also like to request our chairman sir and director sir to please give away flowers and memento to Mr. Nunne Balraj ji, Central Coordinator, BJP. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जी को कि आप श्री धर्मपाल सिंह जी को सम्मानित करें पुष्प गुच्छ और प्रतीक चिन्ह के साथ. एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री धर्मपाल सिंह जी. सर आपका स्वागत है, अभिनंदन है. बिल्कुल हार्दिक स्वागत है. And for next, ladies and gentlemen, to receive, I'd like to request Mr. Santosh Gangwar ji, Member of Parliament, Bareilly. और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जी से कि आप हमारे अतिथि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मीरगंज डॉक्टर DC वर्मा जी को सम्मानित करें. Also like to request our director sir and chairman sir Ghanshyam ji Khandelwal ji and Ashish Khandelwal ji to give away flowers and memento to Mr. Flavio all the way from Brazil. Ladies and gentlemen, a huge round of applause. Thank you very much, Chairman sir. Thank you very much, Director sir. And now, ladies and gentlemen, may I request and invite on the podium our dynamic Chairman, Mr. Ghanshyam Khandelwal ji. But before that, ladies and gentlemen, I'd like to request our Chairman sir and Director sir, Mr. Ghanshyam Khandelwal ji and Ashish Khandelwal ji to give away flowers and memento to Mr. MP Arya, MLA. और श्री MP आर्य जी को आभार व्यक्त करते हुए हमारे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब. And now, ladies and gentlemen, may I request and invite on the podium our dynamic chairman, Mr. Ghanshyam Khandelwal ji, BL Agro Industries Limited, to deliver welcome speech and grace the stage. एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, ladies and gentlemen, Mr. Ghanshyam Khandelwal ji. नमस्कार. आज की शाम में आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय केंद्रीय मंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला जी, हमारे आप सभी के वरिष्ठ 8 बार के सांसद माननीय संतोष गंगवार साहब, हमारे आप सबके बहुत प्रिय हमारे अपने धर्मपाल जी जो पशुपालन मंत्री हैं, मिस्टर एलन डी बैरोस जो ऑनररी कौंसल है इंडिया के, मिस्टर नेनू बलराज जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं बीजेपी के हैं, मिस्टर मनोज कुमार जो हमारे डायरेक्टर हैं, डॉक्टर DC वर्मा जो हमारे ही अपने साथ के साथी हैं, मिस्टर फेलिवो ब्राज़ील जो ब्राज़ील से आए हैं, डॉक्टर MP आर्या साहब, और संभवतः मुझसे कोई नाम छूटा नहीं, अगर छूट गया हो तो क्षमा चाहूँगा. आप सभी का मैं BL एग्रो परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ आके आपने हमें गौरव अपने ऊपर जो गौरव करने का मौका दिया. निसंदेह आपके आने से हम अपने आप को सम्मानित गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. इसी के साथ मैं, क्योंकि आज फाउंडेशन डे है, मैं बधाई देना चाहूँगा या मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा यहाँ पर आए हुए मेरे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का, क्योंकि बिना आपके हम इस आयोजन का कोई मतलब नहीं रहता और आपके आने से ही इस आयोजन की शोभा है. मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया का कि उनके आने से हम ये इसका पूरा कवरेज जा सकेगा. आप आए, आपके आने का बहुत बहुत आभार.
विशेष रूप से जो धन्यवाद देना चाहूँगा, आज जहाँ भी बीएल एग्रो पहुँची, उस बीएल एग्रो के पहुँचने में अगर किसी का मुझसे भी ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो हमारे बैंकर्स हैं, वो हमारे सारे जीएम, सारे बैंकों के जीएम। स्पेशली वी थैंक्स फॉर द जीएम बैंक ऑफ बड़ौदा अश्वनी जी और हमारे सारे बैंकर्स जो डीजीएम्स जो आरएम से आए हैं। मैं आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों जो यहाँ आए हैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपके वजह से हम इस कार्यक्रम को कर पाए। विशेष रूप से मैं यूपीएसआईडीसी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिसने ये इतना सुंदर ग्राउंड हमें मेंटेन करने के लिए दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूँगा, मैं माननीय मंत्री महोदय तक अपनी बात पहुँचाना चाहूँगा कि यूपीएसआईडीसी के इस पूरे क्षेत्र को, यूपीएसआईडीसी के पूरे क्षेत्र के रखरखाव की जिम्मेवारी बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दी गई है, जिसके तहत हमने 3500 पेड़ लगाए हैं विद ट्री गार्ड्स। और यहाँ के जो 19 पार्क हैं वो सारे पार्क विकसित किए हैं। उन्हीं पार्कों में ये सबसे बड़ा पार्क है जो 50,000 स्क्वायर मीटर से भी बड़ा है, जहाँ पर हम ये फंक्शन है। तो यूपीएसआईडीसी के आरएम यहाँ अगर हैं तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे टैक्स डिपार्टमेंट से जो हमारे मित्र आए हैं, जो हमारे अफसरान आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। करना चाहूँगा मैं अपने फ्रेंड्स का, अपने उन सभी मित्रों का जो समय समय पर मुझे उत्साहित करते रहे और इस प्रकार का कार्य करने के लिए मुझे लगातार बताते रहे, प्रोत्साहित करते रहे, उनका धन्यवाद। और इस धन्यवाद की कड़ी में दो विशेष चीज़ें हैं जिसको अगर मैं ना कहूँ तो इस धन्यवाद का अर्थ नहीं है। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मंत्री महोदय सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरी अगली पीढ़ी का, मेरे बेटे का, जिसकी वजह से आज मुझे ये सम्मान मिला है। वास्तव में मैं इस सम्मान का हकदार नहीं था। जो भी कुछ आप देख रहे हैं आज, मेरे बेटे और ये मेरी बेटी की वजह से हुआ है। इतनी मेहनत मेरे बेटे ने की पिछले 20 साल में, जो हम यहाँ तक पहुँच सके। और धन्यवाद मेरी बेटी का, जिसने इतना सब बढ़िया कार्यक्रम सजाया। और विशेष रूप से धन्यवाद मेरी बहू का, जिसने पूरे परिवार को बांध के रखा और इसको कार्य करने का बेटे को मौका दिया। और विशेष धन्यवाद नवनीत का, जो मेरा दामाद है, जिसने लीड्स कनेक्ट के माध्यम से भी मुझे एक विशेष प्रशंसा यहाँ दिलवाई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ आए मेरे सभी साथी ब्रोकर्स का। अगर आप साथ न देते तो संभवतः बीएल एग्रो जहाँ आज है वहाँ नहीं पहुँच पाता। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने लॉजिस्टिक डिवीज़न का। आपने के पास 180 फ्लीट्स हैं और उसकी वजह से आपने हमें सपोर्ट किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंपोर्ट डिवीज़न का, लक्ष्मी एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, जिसकी वजह से हमें सप्लाई क्या कहते हैं मिल पाती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रेन बैंक, हमारी अभी माननीय मंत्री जी कहते हैं रुहेलखंड लैब एंड रिसर्च सेंटर RLRC का, उनके सारे क्या कहते हैं अधिकारीगण का, जो हमारी क्वालिटी को इतना गुणवत्तापूर्ण रख पाते हैं, जिसकी वजह से हम कर पाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा RMPL का, एक दूसरी हमारी कंपनी जिसका भी हमें सहयोग मिलता है। पुनः इस धन्यवाद की कड़ी में सिडिल फ्रांस, जिसने इतने बढ़िया हमको ऑपरेटर्स ला के दिए, जो इतना बढ़िया हमें प्लांट ला के दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर अपने डेकफू को, जिन्होंने इतना बड़ा इंस्टॉलेशन जो रैकिंग सिस्टम ला के जापान से दिया है, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और विशेष रूप से धन्यवाद मैं उनका देना चाहूँगा जिन्होंने, वो सारे मेरे साथी, मेरे कंपनी के जनरल मैनेजर्स, मेरी कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके कंपनी को इस ऊंचाई पे पहुंचाया है। मैं उनका भी आज इस दिन पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सारे सपोर्टिव स्टाफ का, सारे वर्कर्स का, जिनकी अथक मेहनत से मैं मंत्री जी महोदय के संज्ञान में डालना चाहूँगा कि स्पष्ट रूप से 1500 वर्कर्स, 1500 एम्प्लॉइज़ हमारे साथ इस कंपनी में डायरेक्ट हैं और करीबन 3500 एम्प्लॉइज़, 3500 लोग हमसे इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उन सारे ब्रांड्स के, जिनकी वजह से आज ब्रांड फॉला। वो ये जो कड़ी शुरू हुई थी, ये कैलाश खेर साहब से शुरू हुई और आज की डेट में मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं बेलकुलू के। मैं
पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा शिल्पा शेट्टी जी का, जिनकी वजह से ये नरिश ब्रांड का इतना पॉपुलर हुआ। और माननीय मंत्री जी को भी आज नरिश ब्रांड में जो शिल्पा जी खड़ी थे उसके साथ उन्होंने भी फोटो खिंचवाने में का आनंद लिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुनील ग्रोवर का, वो भी हमारे यहाँ पे एक बार चीफ एंकर एक बार उन्होंने भी प्रोग्राम दिया है। मित्रों, पिछले 75 वर्षों से हम लगातार इस काम को चला रहे हैं, कर रहे हैं, और ये जो सफलता आज हमें मिल रही है, ये जो आप जो भी कुछ देख रहे हैं, इस सब में विशेष रूप से हमारे उन ग्राहकों का योगदान है। हमारे सभी मिलने वाले जुड़ने वाले जो भी लोग हमसे कनेक्टेड है, जो भी वेंडर्स हैं, जो भी हमारे सेल्स के लोग हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसी के साथ मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी धर्मपाल जी को संभवतः जाना विशेष 2 धन्यवाद मैं देना भूल गया, जिसने ये पूरा सज्जा कराया। लीड्स ब्रांड करके हमने एक नया स्टार्टअप चालू किया है और एक बहुत अच्छा उसका रेवेन्यू है, 120 करोड़ का रेवेन्यू है। और आलम यह है कि हैदराबाद साइड से और बाकी जगह से भी बहुत सारा काम आ रहा है। लीड्स ब्रांड, लीड्स कनेक्ट जो हमारे दामाद साहब चलाते हैं, उनके माध्यम से हमने एग्रीटेक में भी कदम रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी विज़न होता है, मैं सिर्फ वो कॉपी करता हूं और कोशिश करता हूं कि जो भी विज़न उनके द्वारा दिया गया है हम उसके बारे में सोचें। इंश्योरेंस के क्षेत्र में लीड्स इंश्योरेंस ने जो कार्य किया है, मैं उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और सारे बाकी जितने लोग हैं जिनसे छूट गया हूँ मैं किसी वजह से, माननीय विधायक महोदय वहाँ हैं, विधायक जी से रिक्वेस्ट है, के.एम. अरोड़ा साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का जो लोग आज यहाँ आए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे माननीय मंत्री धर्मपाल जी का, उन्हें कहीं जाना है, वो हमें 2 शब्द आशीर्वचन में। बीएल एग्रो के इस वर्षगांठ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, पशुधन दुग्ध विकास मत्स्य माननीय मंत्री भारत सरकार, माननीय संतोष गंगवार सांसद पूर्व मंत्री, माननीय डीसी वर्मा जी, माननीय MP आर्या जी, माननीय विधायक, मंचस्थ सभी अतिथिगण और इस बीएल एग्रो के MD घनश्याम जी खंडेलवाल और उनकी पूरी टीम, सहयोगी, सभी उपस्थित आदरणीय महानुभाव, मातृशक्ति, पत्रकार मित्रों, मैं बधाई देना चाहूँगा इस अवसर पर भारत सरकार के मंत्री आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी को, क्योंकि उन्होंने आज ब्राजील से लाकर अतिथियों को उत्तर प्रदेश में गिरी गाय पर एक शोध करके, जो हमारी गिरी गाय देसी गाय है, उस पर सीधे जो जिस तरीके का क्लोन तैयार करके उसके अंदर डालकर सीधा गिरी गाय से उत्पन्न वैसे ही देसी गाय में वो क्लोन पैदा होकर यहाँ उत्तर प्रदेश में, और वो भी बरेली में, वो भी घनश्याम खंडेलवाल जी और ब्राजील के सहयोग से। इसलिए मैं आज इनको, घनश्याम जी को और ब्राजील से आए अपने अतिथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस अच्छे कार्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। और माननीय रूपाला जी से मेरा निवेदन है, विनती और प्रार्थना भी है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के पशुपालकों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए नई खोज उत्तर प्रदेश में देंगे ताकि किसानों की आय दोगुनी हो। और माननीय खंडेलवाल जी को भी मैं बधाई देता हूं। आज जिस तरीके से मैंने उनकी यूनिट देखी, किसानों के उत्पाद को खरीदकर संपूर्ण देश में उसको भेजकर संशोधित करके किसानों की आय दोगुनी करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूं। धन्यवाद।
Thank you very much, sir, for your gracious words. And now, ladies and gentlemen, our Honorable Chief Guest, Shri Purushottam Rupala ji, has studied at the Saurashtra University and Gujarat University from 1976 till 1977. Before entering politics, he served as school principal at Hamapur in medium school from 1977 and 1983. He was the chief officer of the Amreli municipality from November 1987 to March 1987. Shri Purushottam Rupala ji was the president of Amreli district Bharatiya Janata Party from 1988 to 1991. And this led to his service as secretary of Bharatiya Janata Party in 1992. He served 3 consecutive terms as a member of Gujarat Legislative Assembly ending in 2002. He was cabinet minister in Narmada for irrigation and water supply in the year 1995 and for agriculture from 9th October 2001 till 21st December 2002. और इसी के साथ अब घड़ी, अब समय हम सभी के बीच है जिसका इंतजार हम सब ने किया है. But before our honorable chief guest, ladies and gentlemen, I'd like to call on the podium Shri Santosh Gangwar ji, Member of Parliament, Bareilly. धन्यवाद. उपस्थित भाई और बहनों, यहाँ पर अधिकांश लोग जो रहते हैं उन्हें मालूम है कि मेरा गांव इसके बराबरी में है बिल्कुल. इसलिए हम अपने घर पर आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ. और वास्तव में मंत्री जी ने यहाँ पर आकर विशेष कृपा की है. तो मैं अधिक न बोलते हुए मैं चाहूँगा कि मंत्री जी यहाँ उपस्थित सभी साथियों को संबोधित करें. और मेरा आभार यहाँ पर ब्राज़ील के कुछ साथी भाई बहन आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर विशेष प्रयोजन से आए हैं, उनकी भी जानकारी आपको मिलेगी. उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत के साथ शुभकामनाएं. मित्रों, वास्तव में अभी जो आप बात सुन रहे थे कि भाई घनश्याम खंडेलवाल ने जिस प्रकार से काम को शुरू किया, सबकी समझ में आ रहा है. उसके बारे में कुछ कहने की हम आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं, पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमेशा जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तब हमेशा एक मजबूत दीवार के रूप में घनश्याम भाई हमारे साथ खड़े रहे और हर तरीके से हमको और हमारी पार्टी को सहयोग करते रहे. तो मित्रों, मैं अधिक न बोलते हुए आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पर हम सबको संबोधित करने का काम करें. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है. हम सभी के समक्ष हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी यहाँ हम सभी को संबोधित करते हुए. सभी को मेरा राम राम. बीएल एग्रो के इस महोत्सव में उनका अभिवादन करने हेतु, उनको समर्थन देने हेतु पधारे हुए सभी, उनके समर्थन करने आए सभी परिवार के सदस्य, मंच को सुशोभित करते हमारे उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, लोकसभा में मेरे साथीदार, मुझे ये बताते हुए फक्र हो रहा है, एक ही विस्तार से 8 बार संसद में जाने का जिनके ललाट पे श्रेय लिखा है. भारत के इतने बड़े संसद भवन में ऐसे 2 ही लोग हैं जो 8 बार संसद में कंटिन्यूटली गए हैं. और एक क्षेत्र से 8 बार जाने वाले अकेले संतोष गंगवार जी हैं, पूरे देश में अकेले हैं. इसके लिए मैं संतोष जी को बधाई देता हूं और आप इस क्षेत्र के सभी मतदाताओं का भी अभिवादन करना चाहता हूं. 8 बार एक नेता को इतना भव्य विजय दिलाना, ये अपने आप में विस्तार के कार्यकर्ताओं का सम्मान है ही है, मगर मेरे साथीदार के कर्तृत्व का, उनके कर्मशैली का, उनका भी परिचायक है. ऐसे संतोष गंगवार जी, मेरे दोनों विधायक महोदय इधर विराजमान हैं, वर्मा जी और आर्या जी,
और खास करके आज हमारे बीच में ब्राजील से जो मेहमान पधारे हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। ऑनरेबल एल्सन गोमस, प्लीज स्टैंड अप। ये हमारे ब्राजील से पधारे हुए हमारे मेहमान हैं। फ्लावियो पेरिस is from Brazil. Flavio Paris is the gentleman who had first Gir breed cow from India to Brazil. His grandfather was the man who take the first breed of Gir cow from India to Brazil. His beloved son Gustavo, his Mrs. Joyce and Mr. Sabrina, all the guests from Brazil, I welcome you all from bottom of my heart, from my country, of the country of Mahatma Gandhi, country of Sardar Vallabhbhai Patel and the country of Narendra Modi. Thank you all. समग्र कार्यक्रम के केंद्र बिंदु आदरणीय घनश्याम भाई खंडेलवाल जी, आज इन्होंने यहाँ अपना इतिहास बताने की कोशिश की। शून्य से लेकर यहाँ तक की यात्रा, यहाँ तक की सक्सेस स्टोरी, आज मैंने उनकी इंडस्ट्रीज को भी देखा, इनके लेबोरेटरी को भी देखा, उनकी टीम से भी मिलना हुआ। एक प्रकार से टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा प्रयोग बहुत ही कम इंडस्ट्रीज के लोग हमारे देश में कर रहे हैं। ऐसे गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्टों में आज घनश्याम दास जी का नाम बड़े गर्व के साथ मैं लेना चाहता हूं, और वो भी एग्री सेक्टर के साथ। बिजनेस किसका है पूछा जाए तो दाल चावल, बिजनेस किसका है तो आटा का। ऐसे विषय को इतनी अच्छी तरह से मार्केटिंग करने के लिए पूरे देश में और अब इंटरनेशनल वो प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप सभी को और खासकर इस अवसर पर बीएल एग्रो को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए भारत के कृषि क्षेत्र को, भारत के पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई फैसले लिए हैं, कई निर्णय लिए हैं। इनके लिए आप सब जानकार हैं। किसानों के अकाउंट में सीधे डीबीटी से नगद रुपये भेजने तक के निर्णय प्रधानमंत्री श्री ने लिए हैं, और प्रधानमंत्री श्री किसानों की मदद करने के लिए जिस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं उसी दिशा में ये घनश्याम भाई भी इंडस्ट्रीज के जरिए उस काम को सहयोग दे रहे हैं। और इसी के कारण किसानों ने जो अपने खेत में एग्री प्रोडक्ट्स पैदा की है उसको राज्य में, देश में और दुनिया में मार्केटिंग करने का बहुत ही अच्छा एक नेटवर्क खड़ा करने का काम घनश्याम भाई ने और उनके परिवारजनों ने किया है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं, बेटी और बाप, फादर एंड डॉटर, इट्स ए ब्यूटीफुल, बहुत ही होमली रिलेशंस होते हैं। पिता का पुत्री के बारे में बहुत ही गरिमापूर्ण व्यवहार होता है। तो घनश्याम दास जब अभी अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र किया, तो हमें बड़ा फक्र हुआ कि एक बाप चल के अपने इस परिश्रम का श्रेय अपनी बेटी को दे रहे हैं। इसके लिए पिता घनश्याम भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं और उस बेटी को भी तारीफ करना चाहता हूं कि जिस बेटी ने
अपनी काबिलियत दिखाकर पिता का प्रेम ही हासिल नहीं किया, पिता का नाम रोशन करने का काम किया। मगर मैं आप सभी के सामने बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं घनश्याम भाई खंडेलवाल जी को इसके लिए बधाई तो देना चाहता हूं, मगर उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी पुत्रवधू को भी श्रेय देने का काम किया। क्या ये दोनों इधर है? मैं विनती करूंगा कि ये बेटी और घनश्याम भाई की पुत्रवधू यदि यहां मुझे सुन रहे हैं तो वो मंच पर आने की कृपा करें। मैं इनको दोनों को आप सबों की ओर से मंच पर इनका सम्मान करना चाहता हूं। यहां मेरा सम्मान हुआ है, मगर मैं इन दोनों का सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि ये स्त्री सशक्तिकरण का भी कार्यक्रम है। ये महिलाओं का मातृशक्ति का अभिवादन करने का अवसर है। सो मेरी विनती है कि घनश्याम दास भाई की लाडली बेटी और घनश्याम दास जी की लाडली पुत्रवधू ये दोनों मंच पर आए। घनश्याम दास जी को लगता होगा कि मैं बेटे को भूल गया हूं, मैं भूला नहीं हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छा परिश्रम किया है, मगर मुझे ये छू गया कि एक ससुर अपनी बहू के लिए एक मंच से उसकी प्रशंसा करे, ये भारतीय संस्कारों का बहुत बड़ा मूल्यांकन आपने दिखाया है। मैं आप दोनों का भारत सरकार के मंत्री के नाते तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका सम्मान करते हुए मुझे बड़ा गर्व और फक्र हो रहा है। आइए मंच पर। और जैसे कि यहाँ हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित कर रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन। सो मैं वैसे तो मैं इंडस्ट्रीज के बारे में और एग्री प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बातें करने वाला था, मगर इसमें इस परिवार की सुगंध मिल गई तो मैं उसी ओर बह गया। मैं ये जो दृश्य देख रहा हूं, यहाँ इंडस्ट्रीज के साथ काम करने वाले लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, प्रोडक्ट को दूर दराज गांवों में मार्केटिंग करने वाले लोग हैं। इनके साथ जुड़े हर प्रकार के परिवार के सदस्य यहां मौजूद हैं। जिस प्रकार का दृश्य यहां खड़ा किया गया है, मुझे बताते में जरा भी संकोच नहीं है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के इनकी यात्रा के 25 साल मनाने में मंच पे भारत सरकार का मंत्री हो, मंच में राज्य सरकार का मंत्री हो, मंच पर सांसद हो, मंच पर धारासभ्य श्री एमएलए हो और विदेश के मेहमान हो, ऐसे मंच से किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का गरिमापूर्ण बयान चलता हो, ऐसा इवेंट मैं पहली बार देख रहा हूं। इसके लिए भी घनश्याम दास जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। ये नए भारत का दृश्य है। ये जो हमारे मोदी जी बोल रहे हैं ना कि मैं नया भारत की कल्पना करके इसको आगे ले जाने की कोशिश में लगा हूं, ये मेरा नया भारत है जहां किसानों के उत्पाद को प्रोसेस करके राज्य, राष्ट्र और इंटरनेशनली मार्केटिंग करने का काम एक छोटे से इंडस्ट्रियलिस्ट ने शुरू किया। मुझे बताया गया कि ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है कि यहाँ कुछ भी नहीं था। संतोष जी मुझे बता रहे थे कि ये 25 साल में परिश्रम से खड़ी की गई एक इमारत है जिसको आज
ये दृश्य देखने का सौभाग्य मिला है। इस बरेली क्षेत्र में हमारे संतोष गंगवार जी का कहना है कि इस प्रकार की रोजगारी देने वाली वो अकेली इंडस्ट्रीज है। ऐसा ये इंडस्ट्रीज यहाँ इस एरिया में उन्होंने खड़ा कर दिया है। इससे और विस्तार में भी अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मैं एक बात बताना चाहूँगा इस ऑडियंस के सामने। हमारे देश में जितना हम एग्रीकल्चर उत्पादन करते हैं उनका 5 से 10% ही प्रोसेस होता है। वी प्रोसेस ओनली 5 to 10% एग्री प्रोडक्ट all over India. The developed country process more than 50 to 60%. So there is a huge scope still now in this process industry. ये अभी भी बहुत इसमें क्षमता है और पोटेंशियल है, और ये देश अपना खुद का ही 140 करोड़ का कंज्यूम करने वाला है। ये फूड प्रोडक्ट ऐसी चीज है जो सबको सुबह उठते ही जरूरी उसका शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे आवश्यक प्रोडक्ट को और हमारे किसानों को इनका अच्छा दाम मिले, इसके लिए इस प्रकार की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना ये हम सबों के लिए हितकारक है। ये और आगे बढ़े, इसके साथ और चीज़ें जुड़ने वाली हैं। ये बीएल इंडस्ट्रीज वालों के निमंत्रण पर ही ये ब्राज़ील के मेहमान हमारे यहाँ आए हैं, और ये ब्राज़ील की इकोनॉमी जो भारत की गाय माता ने बदल दी है। हमारी गाय माता को वहाँ जेबू बोलते हैं, ब्राज़ील में वो लोग इनको जेबू बोलते हैं। वो उनकी देश के अर्थतंत्र बदल दिया है। वो गाय का जो वहाँ ब्रीडिंग अच्छा हो गया है, वहाँ 50 से 60 लीटर दूध देने वाली हमारी ही नस्ल की गाय हैं, उनके ये मालिक हैं। वो अब यहाँ बरेली की धरती ऊपर इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं इनका भारत सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। भारत के पशुपालन मंत्री के नाते इनको स्वागत भी करता हूं, उनको आह्वान करता हूं कि भारत की गाय माता ने आपके देश की समृद्धि बढ़ाने का काम किया है। आपने उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं। ये हमारे बीएल इंडस्ट्रीज के जो लोग, इतने मेहनती लोग हैं जिन्होंने यहाँ स्वर्ग खड़ा कर दिया है, उनके साथ आपका जुड़ना हो रहा है। वो भी सोने में सुगंध मिल रही है। ये भी एक बहुत ही अच्छा समन्वय है, क्योंकि ये टेस्टेड आदमी है तो उस पर भी भरोसा किया जा सकता है। ये हमारे इस विस्तार के टेस्टेड आदमी हैं। इसके साथ आपकी टेस्टेड टेक्नोलॉजी को जोड़ने का ये बहुत बड़ा एक अच्छा संयोग हो रहा है। आप दोनों को भी इस अवसर पर आगे इससे भी अच्छी सफलताएं मिले, इनकी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। और पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में आपके इस प्रयोग के कारण हमारे पशुपालन क्षेत्र में एक नई क्रांति का आरोहण हो, नए क्रांति का अवतरण हो। हमारे पशुपालकों के जीवन में, हमारे देश में, हमारे दुनिया की फूड सिक्योरिटी में एक मानदंड की तरह इस योजना को हम आगे बढ़ाएंगे, और फिर से ये देश दूध और दही की नदियां बहाने वाला देश बने। उसका भी आज यहाँ बीजारोपण हो रहा है। ये बीज अंकुरित होके कभी वटवृक्ष बनेगा, और उस समय भी मौका दिया ईश्वर ने तो उसकी बधाइयाँ करने के लिए भी हम आपके बीच में आएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनश्च घनश्याम भाई खंडेलवाल और उनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। इनके साथ इंडस्ट्रियल और व्यापार के तौर पर जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे ब्राज़ील के साथियों का तहे दिल से स्वागत करते हुए, और हमारे सांसद महोदय, मेरे साथी संतोष गंगवार जी को इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज को एक साथी के नाते संरक्षण देने का आपने काम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जितने भी अतिथिगण जो यहाँ मंच पर मौजूद हैं, आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही मैं
ये अनुरोध करूंगी हमारे मंच पर मौजूद सारे अतिथिगणों का कि आप प्लीज मंच के नीचे सामने वीआईपी रो में प्रस्थान करें। Thank you, ladies and gentlemen. I'd like to request you, everyone, to please proceed to the lounge area. Thank you. इस बीच एडीएम सिटी पांडे जी भी यहाँ आ चुके हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी अनुमति से ही हम आज ये कार्यक्रम यहाँ कर सके, आपका बहुत बहुत आभार। I'd like to request the management to please clear the stage immediately. Thank you. तेरी भक्ति का वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, इन किनारे की कश्ती है वो, गया तुझसे जो अनजान है, यूं तो मुश्किल सवारी तेरी, सब है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां लाख हो, कभी ज्योति न हारी तेरी, अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे, किस किसी ने यहाँ रे, साथ पाया तेरा हे देवा, श्री गणेश 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 देवा, श्री गणेश। गणपति गज मुख मंगल गिटी गिड़ गिटी गिड़ गिटी गिड़ धुम धुम धक धक धैता, जय जगवंदन वक्र तुंड धौनी वक्ता, विघ्न हरण शुभ करण नवीनता, विघ्न हरण शुभ करण नवीनता, विघ्न हरण शुभ करण नवीनता, धुम किट धरोंग धरोंग रणवीनता, धरोंग धरोंग रणवीनता, धरोंग धरोंग रणवीनता। Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। Ladies and gentlemen, एक बार डांसर्स के लिए एक और बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। Come on everybody.
Wow, what a fantastic way to start this evening by praising the Lord. Well, ladies and gentlemen, आगाज means शुरुआत और शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है इस शाम की तो आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली शाम कितनी हसीन होने वाली है. All right, ladies and gentlemen, moving on. For the next performance, I'd like to call on stage is the Yogi's Angel, all the way from Russia. Please welcome Natalia. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. हमारे बीच ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कई सारे नाम बटोरे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, देश में तो इन्होंने नाम कमाया ही है, साथ में विदेश से यहाँ खास परफॉर्म करने के लिए यहाँ हम सभी के समक्ष, हम सभी के बीच मौजूद थे. और Ladies and gentlemen, give it up for Yogi's Angel. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. Come on everybody. And now, ladies and gentlemen, अब वक्त आया है ऐसे कलाकारों को बुलाने का जिनको देख और सुनकर आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे. Ladies and gentlemen, he is an Indian stand-up comedian, film actor and television host. You have seen him in the Kapil Sharma show and Comedy Circus. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजीव ठाकुर. come on everyone, are you all ready? ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਤੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋੜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਲੱਟ ਦੋਨ ਮੋਢਿਆਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੱਗ ਬੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਟੁਕੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੱਗ ਬੱਲੀਏ बस बंद कर दे भाई, जितने पैसे मिले उतने का बजा. मैं सच में बताता हूं कि दुनिया में ना 99% मर्द हुए हैं शायर, लेकिन उन्होंने जितनी तारीफें लिखी हैं लड़कियों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं लिखा. इनके बारे में लिखा जाता है इनकी जुल्फें रेशम जैसी. इधर क्या पथरीली घाटी पे घास उगा हुआ है? एक लाइन नहीं लिखी किसी ने. जितने गाने बने हैं इन पर, ये रेशमी जुल्फें, हमने छाती पे बाल उगाए, किसी ने एक शब्द नहीं लिखा आज तक हमारे लिए. अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है इनकी आंखें झील सी गहरी. इधर क्या कारपोरेशन के गटर. अच्छा, इन्हें कहते हैं कि भगवान ने इन्हें फुर्सत में बनाया है, तो हमारे बाप का टेंडर निकला था कि भर भर के मर्द बना दो. आप देखिए जितने बड़े बड़े तूफान आए हैं आज तक, उसके नाम सुने कभी आपने? समंदर में क्या थे? कैटरीना, नीलम, सैंडी. कभी सुना हो आपने कोई सुरिंदर नाम का तूफान आया हो? नहीं आता, क्योंकि पता है शादी के बाद ये सब तूफान ठंडे कर दिए जाएंगे लाइफ में. मैडम, मैं बताऊं सर, मानना लड़कियां यहाँ जितनी भी खड़ी हैं, आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो अपने लिए जरूर ताली बजाना. देखो, आप जितनी भी बुराइयां या तारीफ कर दो भाई, ईस्ट और वेस्ट लड़कियां आर द बेस्ट. कम ऑन. किसी ने ताली नहीं बजाई. ये देखो 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 बजाई. वेरी गुड. अब देखो, गो ईस्ट गो वेस्ट, मर्द आर द बेस्ट. अब ठीक रही हो.
अब तो मैं सच में कह रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, आप बेटर इनको संभाल सकते हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर राजीव ठाकुर। कम ऑन एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you so आपका much, नाम? सॉरी, कशिश। क्या नाम है? कशिश। कशिश। ये नाम रखा कि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए चीज रखी है? आप हो रहे हो अट्रैक्ट। छोड़ो, मेरी बीवी ना होती तो बताता। थैंक यू वेरी मच, Thank थैंक यू you so कशिश, much, sir. यू आर डूइंग सुपर, थैंक यू थैंक यू। चलिए, अब लोग इकट्ठे हो गए हैं। जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया था, ये मैं परेशान रहता हूँ अमीरों से। सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अमीर देख के डर जाता हूँ। सर, हंसते नहीं अमीर लोग, ये हंस रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये वो अमीर है मुझे लगता है जो ज़मीन से उठ के बड़े हुए हैं, है ना, तो हंस रहे हैं, अदरवाइज हंसते नहीं। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं मुंबई में ना फंस गया एक बार अमीरों के शो में। सर, तेरे को क्या गैस हो गई है, बैठ जा। तो मैं सर अमीरों के शो में फंस गया, बिजनेस क्लास। सर, आप तो फिर भी किसी को साथ में लेके बैठे हो, 3-3 लोग एक सोफे पे एडजस्ट हुए, वो नहीं हो रहे थे। एक सोफे पे एक आदमी अपनी बीवी को भी कहता था नेक्स्ट सोफा प्लीज। ऐसे अमीर लोग। सर, मैंने एक जोक सुनाया, हंसे ही नहीं। मैंने कहा सर हंसो, कहते तू सुना, हम अमीर लोग हैं, हमने हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने 2 जोक और सुना दिए। मैंने कहा सर ताली बजा दो, कहते बेटा तू सुना, हमने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। अच्छा, 6 महीने बाद ना मुझे बाजार में मिले। मैं कहा हाय सर, हाउ आर यू? कहते मेरी शादी हो गई। मैं कहा भाभी जी? कहते हनीमून पे। मैं कहा आप? कहते अमीर लोग हैं। तो मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही है सर, जिंदगी में कुछ चीजें जो आपके हिस्से की कोई नहीं कर सकता, आपके हिस्से का कोई मुस्कुरा नहीं सकता, आपके हिस्से की कोई ताली नहीं बजा सकता, तो ये काम आदमी को खुद ही करने होते हैं। करें शुरू शोभ? हो गया? कर दे चालू? तो अब बुलाते हैं मंच के ऊपर उस सनसनीखेज कलाकार को जिसने करियर शुरू किया एक सुपरस्टार के घर से, यानी कि गोविंदा के भांजा। जब टीवी पे आया तो इस कदर छा गया कि उसे लोग कृष्णा अभिषेक से सिर्फ कृष्णा कृष्णा कहना शुरू हो गए। फिल्मों में आया, बोल बच्चन, एंटरटेनमेंट, अजय देवगन हो चाहे अक्षय कुमार, बराबर की टक्कर दी जब एक्टिंग में। फिर कपिल शर्मा शो में आपको एंटरटेन किया, कभी सपना बनके, कभी जग्गू दादा बनके, कभी जीतू जी बनके, कभी बच्चन साहब बनके। एक नाम अनेकों काम, एक रूप अनेकों काम। तो आपकी जोरदार तालियों में टीवी का सुपरस्टार, द बिगेस्ट एंटरटेनर, कृष्णा अभिषेक। चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से प्राण रे, हमारी बॉडी से प्राण रे। इस कुत्ते को मार, कुत्ते को मार, अक्षय कुमार। जॉनी जॉनी तूने पी है
थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरे को इतने अच्छे से रिकॉर्ड किया, मेरे डांस बंद करो, इतना प्यार बंद किया। करो। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता थैंक नहीं यू। कि मैं इतना अच्छा डांस करता हूं कि आपने मेरे डांस को इतना प्यार दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे डांस पे। अबे मैं नाच रहा था यहाँ पर, मेरे लिए तालियां बज रही हैं। किसके लिए तालियां बज रही हैं? मेरे लिए तालियां बज रही हैं। अबे तेरे लिए हूटिंग हो रही है, तालियां मेरे लिए बज रही हैं। इनकी तालियों से मुझे पता लगा तू डांस कर रहा था? मैं प्रभु देवा से अच्छा डांस करता हूं। बेटा प्रभु देवा ने अगर सुन लिया ना, हाँ? तो रजनीकांत बन के ना तेरे को गोली मार देगा। आधी गोली तेरे को यहां लगेगी, आधी यहां पर। आधी आधी क्यों लगेगी भाई? गोली तो एक निकली थी। अबे रजनीकांत है ना, बीच में चाकू भी तो मारेगा। हाँ, गोली तो क्या आधी हुआ? इधर और आधी इधर। तो क्या हुआ? आधी इधर आधी इधर, मैं तो बच गया ना। अबे चक्कू कहां जाएगा? यहाँ पे ना बीच में बकवास कर रहा है। जब भी आता है यार, कोई अच्छी बात कर लिया कर यार। इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतनी सोफिस्टिकेटेड जन। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। और सबसे ज्यादा तालियां जिन्होंने हमें यहां पर बुलाया, बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन घनश्याम जी और उनकी फैमिली के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जोरदार तालियां। हेलो मैम, क्या बात है। आपकी साड़ी मैम इतनी कमाल की है, पूरा संजय लीला बंसाली का सेट लग रहा है। इतनी खूबसूरत लगने पर। व्हाट अ ब्यूटीफुल फैमिली एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। और क्या बात है, बरेली बरेली पहली बार आए हैं। हाँ। क्या हाल है बरेली? ये क्या बात है। ये ये तक यार, इधर गेस्ट से ज्यादा तो मुझे बाउंसर लग रहे हैं यार। बहुत बढ़िया। और घनश्याम जी कहाँ पर है? मैं एक बार देखना चाहूंगा, मेरी मुलाकात नहीं है घनश्याम जी से। कहाँ पर है सर? वहीं पे बैठे। घनश्याम जी प्रणाम प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। क्या बार बनाया सर, मजा आ गया देख के। हाँ क्या बार है यार सर, ये तो छोटा फिल्म फेयर अवार्ड लग रहा है यार। भाई साहब, बार बना के ऐसा लोगों को बिजी किया, उनका मुंह ही नहीं कर रहा किसी को देखने का। वैसे तो बरेली का वो गाना बड़ा फेमस है, झुमका गिरा रे, लेकिन इतना बड़ा बार बनाया है झुमका का तो पता नहीं, झूम के जरूर गिरने वाले हैं लोग। क्या बात है यार, ऐसे माहौल में मैं तो कहता हूं बजाओ गाना, फिर से नाचूंगा मैं। ओहो, नाच ले, नाच ले। तेरे को आपने क्या? देखा होगा इसको, नाचे बगैर तो इसको रोटी हजम नहीं होती। कपिल शर्मा शो में भी डांस कर करके एंट्री। कपिल शर्मा शो को डांस इंडिया डांस बनाया हुआ था इसने। हाँ, इतना नाचता है। तो एक काम कर, हाँ। एक ना घाघरा चोली सिलवा, अच्छा, वो पहन के ना उमराव जान की रेखा बन के आया कर, उनको भी मजा आए। अबे रेखा भी अमिताभ बच्चन के लिए आती है, ठाकुर के लिए नहीं। इसका तो वो हाल है भैया, शोले का जो गब्बर है ना, उसने इसको फोन किया था, बोले मुझे पता है तू वो वाला ठाकुर नहीं है, फिर भी तेरा हाथ काटने को मन करता। ठीक है, मेरे हाथ कटवा, मेरी जुबान कटवा, मैं देखता हूँ तेरे लिए तालियां कौन बजवाता है। अरे नहीं, मजाक नहीं, कर रहा नहीं। हूं। अरे ठाकुर मजाक कर रहा हूँ यार, आजा चलो। बजवा मेरे लिए एक ताली। बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सुपरस्टार सस्ते गोविंदा के लिए। क्या बोला तूने? सस्ते गोविंदा के लिए। मैं सस्ता गोविंदा? हाँ जी। ये बहुत महंगे साहब है ना, महंगे। इनका बताता हूँ ना, मैं आपको बताऊँ, इस शो के लिए मुझे फोन आया। हाँ। मैम, आपके जो कोऑर्डिनेटर उन्होंने फोन किया कि बरेली में ऐसा ऐसा एक शो है और हमने राजीव ठाकुर को साइन कर लिया है। पहले मैं साइन होता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। यस। पर वो कहते हैं नहीं, हम चाहते हैं पब्लिक भी आए, और पब्लिक आए और रुके भी, इसीलिए कृष्णा जी हम आपको भी साइन करना चाहते हैं। मैंने कहा थैंक यू सर। बोले सर आप कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा जो राजीव ठाकुर ले रहा है उससे 5 लाख ज्यादा दे देना। तो कहते हैं ठीक है फिर 5 ही ले लो, क्योंकि वो तो फ्री में आ रहा है। यार आना पड़ता है, इतना खूबसूरत परिवार इतने प्यार से बुलाएगा, क्यों नहीं आएंगे? आना पड़ता है। और वैसे भी इन्होंने एक शो थोड़ी करना है, इतने लोग कई शो करने हैं। पहले शो में पैसे मांग लिए तो मैंने अपना काम खराब थोड़ी करना है। एक मिनट, क्या कहा तूने? अपना काम खराब थोड़ी करना है, पहले ही मैं पैसे मांग लूं। बेटा काम उसका खराब होता है जिसके पास काम होता है। आपने देखा नहीं मैम, हमारा शो देखते हैं आप, कपिल शर्मा शो, उस पे ये अपने दोस्त कपिल से काम मांगने आ जाता है हर हफ्ते, देखा है ना? लेकिन अभी मिल गया ना, अभी कर रहा हूं ना, मिल गया ना काम। अरे मिल गया तो क्या उखाड़ लिया तूने? स्टार तो मैं ही हूं ना।
तो शर्म उनको आनी चाहिए ना जो मेरे दोस्त से काम मांग के स्टार बने हैं। अच्छा सच बता रहा हूं मैं, इसको मांगने का इतना शौक है, ये तो पैदा गोविंदा के घर में इसलिए हुआ था कि बड़ा होकर फिल्मों में काम मांग सके। कश्मीरा से शादी की ताकि प्रोड्यूसर से काम मांग सके। लहरी साहब के साथ जोड़ी मंगाई ताकि हम पंजाबियों से काम मांग सके। अब इसने जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं ताकि उनका मुंह दिखा के काम मांग सके। भाई साहब मांगने का इतना शौक है, इसके बगल में मंदिर है, वहां गया, वहां से भगवान ने इसको दूर से भाग, कितना मांगेगा भाई, भाग। बकवास नहीं करना, और खासकर कश्मीरा के बारे में नहीं, है कि नहीं? अबे मेरी लहरी वाइफ साहब कैसे हैं पहले वो बता। लहरी साहब हाँ। वो बुड्ढे हैं अभी। हमारा एक शो आता था कॉमेडी सर्कस, मैम आप देखते थे? हम लोगों ने कहती हो तो बहुत कुछ सकता था, वो तो मैं इज्जत बचा के भागा ही। बकवास कर रहा है, सही मैं में। बता रहा हूं तेरे को। और ये भी जब पैदा हुआ, इसके डैडी के पास पैसे नहीं थे, वो गए, बोलते आई एम सॉरी मेरे पास देने के लिए फीस नहीं है। उन्होंने बोला आप इधर आइए, फीस हम आपको देंगे, किसी को बताना मत कि ये यहां पैदा हुआ था। ये हाल है। यार एक बात बता, अभी मैं कपिल शर्मा शो कर रहा हूँ, हाँ तूने इतने साल किया, एक्सपीरियंस तेरा, हाँ। क्या करूं कि मैं सुपर हिट हो जाऊं वहां पे? अच्छा तेरे को हिट होना है। यस सुपर हिट। वैसे तो मुश्किल है, लेकिन देख ठाकुर परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। जैसे हम लोग अलग अलग किरदार करते हैं, मैं कर लेता हूं भाई, कपिल भी करता है, मैं भी करता हूं, तो ऐसे अलग अलग। आई हैव वेरी। अच्छा? अंधेरी रातों में क्या था ये? भीख मांग रहा है? क्या कर रहा है? ऐसे भीख मांगते हैं? अच्छा तू कैसे मांगता है भाई? मैं तो छीन लेता हूँ ऐसे। अच्छा चल एक काम करते हैं, इतनी हाँ। सारी ऑडियंस है, Yes, इतने yes. सारे जजेस हैं हमारे, ठीक है? हाँ। इतनी सारी अर्चनाएं जी भी हैं, वाह वाह, सिद्धू जी भी होंगे कहीं ना कहीं, भले हाँ, बरेली हाँ। है ना, शेखर जी भी हैं, बहुत सारे। एक आप लोग इसको जज करिए, बताइए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है? मैं एक या, सिचुएशन देता हूँ, या। मैं एक डॉक्टर हूँ, ओके तेरे पेट में दर्द है, ओके ठीक है? ओके। और तू कैसे करेगा बता? ओह वेरी इजी। हेलो डॉक्टर। अबे डॉक्टर को बुला रहा है, कुत्ते को बुला रहा है, क्या कर, क्या होता है ये? पेट में दर्द था तो मैंने कहा, अरे ऐसे कैसे? अबे इमोशन लेकर आ यार, पेट में दर्द है तेरे। हाँ तो पहले बताना, डायरेक्टर ही घटिया, इमोशन लाना बताएगा हाँ तो इमोशन लेकर आया, आएगा ना। हाँ। डॉक्टर साहब मेरे अबे पेट वो में। अमिताभ बच्चन की जूठन, गंदी 10वीं कॉपी लग रहा है बच्चन साहब की। अबे दर्द है, दर्द, दर्द दिखना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए दर्द। अच्छा दर्द। हाँ मैंने बोला ना डायरेक्टर घटिया, बताता ही नहीं ढंग से चीज। कभी तुझे इमोशन चाहिए, कभी दर्द, सीधा बात। हाँ, करके दिखा। दर्द। डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब। अबे अमरीश पुरी ने तेरा सुहाग उजाड़ दिया है, यहाँ का चूड़ियां तोड़ रहा है। अबे रौनक लेकर आ, फेस पे एक रौनक होती है एक्टर के, कपिल को देख, मुझे देख, एक रौनक होनी चाहिए चेहरे पे। मैंने कहा था ना डायरेक्टर ही घटिया, ढंग से बताता ही कुछ नहीं है, जो चाहिए बोल। तूने क्या नवाजुद्दीन को नंगा देख लिया क्या? ऐसे क्या हंस रहा है? क्या बकवास कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आती है? उनका ब्रांड एम्बेसडर, तू उसके कपड़े उतार रहा है यहाँ पे। मैं इसके पैसे काटो। एक काम कर, मैं चल एक नवाज काम भाई को कर, शिकायत लगाऊंगा। तू एक काम कर, चल। हाँ। तेरे से होगा नहीं, मैं कभी स्टैंड अप करता नहीं हाँ। अकेले, ठीक है? मैं तू मेरे को स्टैंड अप सिखा दे, आज सबके सामने सिखा दे। ठीक है? एक्चुअली इसने कभी अकेले कुछ किया नहीं है, सुहागरात में भी बंदा साथ लेके गया था। सॉरी सॉरी, ओह सॉरी, ओके। तो इसको आज अकेले स्टैंड अप कैसे करते हैं, अकेले स्टेज पे कैसे जाते कैसे हैं? करते हैं, क्या करना है? तू जो मैं करूंगा वो तुझे करना है, ओके? जैसा तू करेगा सेम वैसा सेम, डिट्टो। ठीक है? ओके। चल हाँ, सबसे पहले स्टेज पे आए, सबसे पहले स्टेज पे आए, सिखा रहा हूं। सिखा रहा हूं। अभी मैंने शुरू नहीं किया। अभी मैंने शुरू नहीं किया। अबे कर रहा हूं ना। अबे कर रहा हूं ना मैं जो अच्छा अच्छा। मैं कितना हैंडसम हूं, मैं कितना हैंडसम हूं, मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं कितना बड़ा कुत्ता कमीना हूं। तू होगा भाई, मैं तो नहीं हूं। तू ही कुत्ता है, तू ही अकेले कर। आजा आजा हाँ। आजा 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 आजा। थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ा सा हमें वक्त चाहिए, क्योंकि इस मर्द के अंदर एक औरत भी छिपी है।
जैसा अरे अभी हमारी तो मुझे एंकर घबराहट ने- हो रही है, इतना ओ कर रहे हैं। जैसे हमारी एंकर ने बताया था, उसको मेकअप करने में 4 घंटे लगे, वो ओरिजिनल लड़की है। हमें इस लकड़ी के आदमी को लड़की बनाना है तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि विद इन 20 मिनट्स आते हैं 20 मिनट, तब 20 तक आप मिनट में लोग आते बाहर हैं। पे जाइए। मैं नहीं, देख नहीं, रहा हूँ क्यों बोतलें जाइए? भरी हुई हैं, अभी खाली नहीं हुई हैं। लेकिन हम जाएंगे तब और वापस आएंगे तब, जितना मजा आया हो उतनी तालियां बजाओ, ताकि हमें पता लगे कि हम ठीक काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, thank you. थैंक यू, थैंक यू। कीप एंजॉयिंग योरसेल्फ। वाह, वाह यार, क्या बात है, क्या देखो। यार। हमारे एंकर्स के लिए एक बार जोरदार जोरदार तालियां। तालियां हो जाएं। क्या एंकरिंग कर रहे हैं, वाह। ये ऐसा क्यों बीच में इतना घना जंगल, और ये अच्छा ऐसा ये नहीं लग गलत रहा- कटवाया है कि नहीं, क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे पता क्या लग रहा है, इधर आओ भाई साहब आप। मुझे ऐसा लग रहा है हाँ। कि ये 3 भाइयों के खेत थे, 2 के उजड़ गए, 1 का बचा हुआ है। वैसे आपका नाम क्या है? MC Lakozi. MC Lakozi. ये नाम लाखों रखा जी कि के चिढ़ाने के लिए हमें रखा है? ये तो ऐसा लग रहा है कोई दवाई का नाम है, लाकोजी। नहीं नहीं, लेकिन बहुत अच्छा, बढ़िया है, एक वेरी बात हैंडसम। बताओ, और ये बंदा- ये लेकिन ये बाल ये थोड़े गड़बड़ हैं। अगर कैसे? किसी बुजुर्ग ने आशीर्वाद दे दिया वो तो घायल हो जाएगा। हाँ यार, ये तो चुप चुप भी सकते यार हैं। हैंडसम आदमी है तुम इतने, तो जाके फिल्मों में काम करो। ऐसे लोग फिल्मों में काम कर रहे, तुम इधर खड़े हो। फिर बकवास, फिर बकवास। सॉरी 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 सॉरी, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार इन दोनों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू लैकोजी। ये लीजिए। अगर मैंने ये नाम 10वीं में याद कर लिया होता, मैं डॉक्टर बन जाता। इतना मुश्किल ना, वो देखो। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबने एंजॉय किया, हाँ या ना? Yes, ladies and gentlemen, presenting a very uncommon talent who is just 10 years old, a avid reader with very vivid imagination, an author with a couple of books already to his credit. He has passion for music, a pro in Western, classical and rock talented and proclaimed vocalist, and plays professional level guitar and piano from our own family. Ladies and gentlemen, put your hands together for Vedant Ravikar. So close, no matter how far. Be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I understand, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open the mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know, but I know so close, no matter how far. Could be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters.
what they know, but I know. Never wrote myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I will just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they say, never care for games they play, never care for what they do, never care for what they know, and I know. Never care for what they say, never care for games they play, never care for what they do, never care for what they know, and I know. So close no matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. No, nothing else matters. Tell me something good. Are you happy and smarter? Or do you need more? Is there something else you're searching for? In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Did I try to feel that void? Or do you need more? Did heart keeping it so hard? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I feel myself. I'm of the deep end, waters I dive in. I'll never reach the ground.
Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां हो जाए for वेदांत रविकर. मुझे अभी अभी इनकी मम्मी जी ने बताया that he is self taught. इन्होंने खुद सीखा है. इतना बड़ा टैलेंट. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. Come on, ladies and gentlemen. और एक और बार तालियां होनी चाहिए रिचा खंडेलवाल रविकर जी के लिए भी. भाई ऐसी औलाद पैदा करिए आपने, इतनी टैलेंटेड. Big congratulations, Vedant. That was very nice, very nice. All right, ladies and gentlemen, for the next performance, I'd like to call upon is the Yogis Angels once again, all the way from Russia. Please welcome Natalia and Emily. So once again, we are going to see this international artist performing among all of us. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Yogis Angel, everybody. All right, ladies and gentlemen, let's continue this evening and welcome on stage the dance troupe Fireball, everybody. Ladies and gentlemen, put your hands together. उसकी गली प्रेम गली उसने मेरा नाम लिया मैंने जिया थाम लिया उसने मेरा नाम लिया मैंने जिया थाम लिया उसने मुझे छेड़ दिया मैंने मुंह फेर लिया मरती मैं क्या करती रस्ते में वो खड़ा था मेरे पीछे पड़ा था
fabulous performance. Come on everyone, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे इन कलाकारों के लिए. इन्होंने इतना अच्छा यहाँ परफॉर्म किया है और आप सभी को एंटरटेन किया है. Ladies and gentlemen, give it up for Fireball, everybody. बरेली जोरदार तालियां हो जाए. तो भाई मैं आप सभी को बता दूं कि अब the music, आपकी इंतजार जो है वो अब समाप्त होने को आ रही है और अब यहाँ स्टेज पर फिर से एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें none other than राजीव ठाकुर जी का. Come on. और कृष्णा अभिषेक का जोरदार तालियां हो जाए, ladies and gentlemen. हेलो हेलो. अरे सच में लोग दारू पीने चले गए क्या? चलो ये हैं, देखो जिन्होंने पैसा खर्च किया वो खड़े होकर देख ही रहे हैं. आप बनिए हो क्या? अच्छा होता है. ये देखिए, अरे मैं सच में बताऊं, कभी चले जाओ बनियों के, उनका डिटोल की शीशी टूट जाए ना तो उंगली काट लेते हैं कहीं डिटोल ना वेस्ट हो जाए. So लेकिन थैंक यू वेरी मच, ये आपका प्यार है कि आप हमें देखने के लिए इतना रुक रहे हैं. ये मैडम को पहचाना आपने? शी इज वेरी गॉर्जियस गर्ल. So, ladies and gentlemen, once again we have this fantabulous, amazing performer with us, yeah. none other than Mr. Rajiv Thakur. Yeah. We have seen him in number of shows, none other than Kapil Sharma love you. comedy show. क्या? देखा, यही प्रॉब्लम है लड़कियों की. वैसे बड़ इंग्लिश बोल रही थी, 4 लड़का 3 शब्द इंग्लिश के बोल देना, इनकी इंग्लिश खत्म. सच में बता रहा हूं. क्या मतलब? मैडम आपको इंग्लिश नहीं आती? मुझे इंग्लिश आती है, आपको नहीं आती. आई हैव very much English. Where? Where I have once there was a crow, he was very thirsty to the principal Jagajoti High School. I beg to say to yours sincerely XYZ. I have English. और तुम्हें शर्म नहीं आती है? पंजाबी लड़के के साथ इंग्लिश में बातें कर रही है. पंजाबी लड़के का और इंग्लिश का वही संबंध है जो सलमान खान का अपनी कमीज के साथ है, कहीं भी उतर जाती है. What are you doing, girl? I was just checking. एक बात your- बताओ. अच्छा, हाँ. मैं पर्सनली कुछ लड़के मुझसे पूछ रहे थे, आपकी एज क्या है? भाई आपको पता नहीं, लड़कियों के कभी एज नहीं पूछते. मैं यही आपसे problem पूछूं आपकी इनकम क्या है? अच्छा, यही प्रॉब्लम है, लड़कियों से उनकी उम्र पूछ लो ना. अच्छा, ये छोटे शहर में ना, अच्छा मैं आंटी से पूछूंगा, सही उम्र बताएंगे ये. दो देखो, आंटी तो ऐसे सही उम्र बताएंगे. क्या एज है आपकी? 16. एक तो ये लड़कियां ना 16 से आगे बढ़ती नहीं है. अच्छा 16, 17, अच्छा अटक जाते वहीं पे. लोग बोलते हैं मर्द की जुबान पत्थर पे लकीर, मैं कहता हूं औरत की जुबान पत्थर पे लकीर. एक बार जो उम्र बता दी, किसी का बाप नहीं चेंज कर सकता. हाँ? किसको क्या? आपको थोड़ी बोला मैंने, आपके पीछे हैं वो, गुस्सा मान जाएंगी अब. आपके चक्कर में मैं उनसे गालियां खाऊंगा. नहीं, मैं सच में बता रहा हूं. अच्छा, जब तक तो होती है ना 19 टीन एज, तब तक बताएंगी स्वीट 16, 17, 18, 19. अच्छा, जैसे 20 क्रॉस किया ना, 25 पे जाके तो ऐसे पत्थर रख देती हैं, इससे आगे नहीं जाना. अच्छा, किसी से पूछ लो 25. अच्छा, 5 साल बाद आई थिंक 25. अच्छा, 10 साल बाद आई थिंक 25. पास में अपनी बेटी खड़ी थी, वो आके बोल रही है मम्मी उम्र जो मर्जी बताना, लेकिन अपने और मेरे में 9 महीने का फर्क जरूर रख लेना. ये देखो, इनकम की बात करो तो लड़के अक्सर ऐसी ही बातें करने लगते हैं. और इनकम तो हम इनकम टैक्स वालों की वजह से नहीं बताते. तुम तो कान में पूछो, बताऊंगा. मैं राजीव जी, मेरा ना बड़ा मन कर गया कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं. पूछो. इंस्टेंट पूछ रही हूँ. पूछो. कि आपको क्या लगता है, देखो यहाँ पर कितने लोगों की शादी हो गई, पहले वो बताओ. शादीशुदा लोग, ये सारे कवारे बैठे हैं यहाँ? नहीं, कुछ तो शादीशुदा ने हाथ नहीं उठाया, इसलिए कि शायद आप उनको देख लो. तो भाई आपको क्या लगता है कि एक शादी होने के बाद एक अच्छे हस्बैंड में क्या क्या गुण होने चाहिए? देखो, मुझे किसी ने बताया था कि अच्छे हस्बैंड में क्या गुण होने चाहिए. सबसे पहला गुण होना चाहिए, जो बीवी ने कहा मान लो, दैट्स ऑल. अच्छा, आप देखेंगे मतलब जितने भी व्रत आए हैं ना, सिर्फ औरतों के हिस्से में आए हैं. 16 सोमवार के व्रत रखो, है ना, कि अच्छा पति मिलेगा. तो मैंने पूछा हम क्या रखें कि अच्छी बीवी मिले. फिर मुझे किसी ने बताया कि अच्छी और बीवी 2 अलग अलग चीजें हैं, ये इकट्ठी होती नहीं. आप बहुत सताए हुए हैं. हम सबकी सहानुभूति है सर आपके साथ फिर. लेकिन मैं सच बता रहा हूं, ये होता है. आप देखिए, मैं मुंबई से हूं, मैं अच्छा वैसे अमृतसर से हूं, छोटे शहर में. तो ऐसी खूबसूरत लड़कियां मिलती हैं हमें वहां पर, राइट. आप मुंबई चले जाइए,
ओए होए होए होए, एक तो नया फैशन आ गया डाइटिंग। पता नहीं क्या खा रही हैं, खाती नहीं कुछ, एकदम डाइटिंग, ऐसे मुंह कर लिए। सच में समझ में नहीं आता, पप्पी मांग रही, पप्पी दे रही हैं। मैं सच में बता रहा हूं, सेल्फी जैसा मुंह आ पड़ा। मैंने कहा ऐसा मुंह हमारे वहां ना बुजुर्ग लोगों का होता है जब बीड़ी पीते थे। ऐसे ऐसे मुंह, ऊपर से वजन है ही नहीं। कितना वजन है? 15 किलो 25 किलो। सड़क पे खड़ी होंगी, पूछो कहां जा रही हो, कहती जिधर हवा होगी उधर चली। ऐसे हालात। लेकिन इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अभी तक बेचारी मॉडल के पोज में खड़ी थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू आर वेरी कशिश। थैंक यू सो मच। वैसे सर, मैंने आपसे जो पूछा था ना, मैं सोची 2 लाइन में बता के जाऊं। बताइए, बताइए, बताइए। अक्सर लड़कियों को चाहिए क्या होता है एक अच्छे पति में, तो जिन्हें शायरी समझ आती है वो इरशाद और वावा जरूर करना। सो भाई, हस्बैंड हमारा ऐसा हो, इरशाद वावा कुछ तो करो। आंटी, आंटी प्लीज, आंटी नहीं मैडम, प्लीज जाइए मत। मैंने ना सपना को बड़ा मुश्किल से तैयार किया, गोंद वोंद लगा के। उसी को लेने जा रहे हैं? तो भाई सच में जा रहे हैं? नहीं, टेंशन मत लो आप, पेमेंट पूरी मिलनी है। इसको पेमेंट की पड़ी है, हमारी इज्जत लुट रही है। हद हो गई है। मैडम आप बहुत हंस रहे हैं। मैंने अर्चना पूर्ण सिंह को आपकी फोटो खींच के भेजनी है कि तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। हमने नई अर्चना पूर्ण सिंह ढूंढ ली है, वो भी स्वीट 16 वाली। स्वीट 16 वाली। अच्छा, उनके 2 बड़े गुर्दे हैं, मुझे आप में 4 लग रहे। हाँ, शेर सुनाओ। हाँ जी। तो भाई, हस्बैंड हमारा ऐसा हो जिसके वॉलेट में पैसा हो। वाह वाह, लंबी गरीब आदमी सुसाइड कर ले जाके। आइए, आगे आइए। लंबी उसकी हाइट हो, वाह। लंबी उसकी हाइट हो। भाई तू तो निकल अभी, तेरा तो काम हो गया। तो भाई, लंबी उसकी हाइट हो, हाँ। गुस्से का थोड़ा लाइट हो, हाँ। जब भी मेरी सास से फाइट हो, कहे जानू तुम ही राइट हो। भाई आए हाय, ये देखो, ये सारे जो है ना, ये रिलेट कर पा रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये बीवी के नीचे लगे हुए हैं, तालियां बजा रहे हैं जो। लेकिन बहुत अच्छा शेर है। कहते तुम ही राइट हो। वो भी पता बंदा कब बोलता है, जिसकी बीवी इतनी वाइट हो। देखो तो सही कितनी गोरी है। आप क्या सुबह परांठे पे कोल्ड क्रीम रख के खाती हो? इतना गोरा क्यों है? इतनी गोरी तो लाश होती। जिंदे को लाश बना दिया नहीं, आपने। नहीं, मैंने बताया हमारे यहाँ इतनी जिंदा लाश होती है। लेकिन बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। करें शुरू आगे फिर कार्यक्रम। मेरा काम होता है वार्म अप। वार्म अप हो गया मैडम? हो गया? यस। ये पीछे अमीर लोग, फिर मैंने इनको बताया था कि ताली बजानी बड़ी जरूरी है लाइफ में। बस अच्छा, हम कहते हैं जोक सुना सुना मर जाएं, इन्होंने नहीं बजानी। बाबा रामदेव बोलते ताली बजाओ, योगा है। बिना बात के सुबह पार्क में जाके बजा रहे थे। चलिए सर, शुरू करते हैं। अब बुलाते हैं आपकी फेवरेट। भगवान करे ऐसा सपना किसी को ना आए, किसी के सपने में ऐसा सपना ना आए। ये पीछे किसने गाने लगा दिए? किसके बाप का डीजे चल रहा पीछे अलग ही है? अच्छा, बच्चों के, मतलब बाप के बच्चों का, किसी के बाप का नहीं चल रहा। अब हुई शांति। भाई 2 मिनट बंद कर ले डीजे, भगवान तेरा भला करे। ठीक है, चलो अब बुलाते हैं आपकी। अच्छा, सपना किस किस को अच्छी लगती है? सबको अच्छी लगती है। बेटा तूने दारू पी ली ज्यादा। अकेली सपना मत देखना, सपना के पीछे का मर्द भी देख लेना, ज्यादा मजे मत ले लेना उसके, ठीक है? तो आपकी जोरदार ताली में बुलाते हैं द कपिल शर्मा शो की द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर, सपना आपका अपना। आवरा का दावरा मसावरा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा। बरेली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए। बरेली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए। काहे मारे रे ताना, क्यों बनता है सयाना?
अबे बंद कर, तूने तो मुजरे लगा दिया इधर। माइक माइक माइक। देखा, मैंने कहा था सपना। एक मिनट, तुम लोग इधर ही खड़े रहो। ऐसा हल, ऐसा हल। क्या करता है रे? ऐसा ऐसा क्या करता है तू? छेड़ रहा है मेरे को। पहली बार बरेली आई तो मैं बद्दुआ देती तेरे को। भगवान करे तेरी शादी हो, तू सुहाग रात पे घूंघट उठाए और अंदर से बीड़ी पीते वॉचमैन निकले। हट। और तू इधर आ। या तो नान निकाल दे या तो जान निकाल दे मेरे। और तू इधर आ, तू इधर आ। क्या सपना सपना क्या करता है रे? भगवान करे तेरे को छींक के साथ लूज मोशन भी लग जाए, तेरे को पूरी जिंदगी समझ में ना आए कि टिश्यू पेपर यहां रखना है कि यहां रखना है। फट इधर से। बड़े आए इधर। फट। चलो हट। सपना इतना गुस्सा नहीं छेड़ता है करते। मेरे को। अच्छा अच्छा, सपना गुस्सा नहीं करते। तू मेरे को अच्छा लगा, तू बाद में मिल। तू छोटा, मैं तेरे को देख के गोविंदा की याद आई मेरे को। आजा आजा। हाय 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 हाय। हेलो, कैसे आप लोग? क्या बात है। सपना जो है नाला सुपारा, नाला सुपारा में मेरा घर है, मालूम है ना? नाला सुपारा से इधर बरेली आईली है। अब आपकी ताली बताएगी कि टीवी पे कितना छायली है। बहुत लोग ताली बजाए रे। ये वाला अंकल बहुत बजाए, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप आना, मेरा मसाज पार्लर है। हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं। आपको मैं उधर सुपरमैन मसाज देगी। सुपरमैन मसाज। हाँ। उसमें क्या करेगी? इसमें क्या रहता है, हम लोग इतना बड़ा तवा लेते हैं, हाँ उस पे तेल डालते, हाँ। गरम करते, हाँ और कस्टमर का कपड़ा उतार के हाँ। उसको तवे पे बिठाते। तो इसमें सुपरमैन मसाज क्या हुआ? एक बार गरम तवे पे बैठ के तो देख, ऐसा उड़ेगा ना तू, तेरे को समझ में नहीं आएगा कि कच्छा अंदर पहनना है कि बाहर पहनना है। अच्छा, वो अंकल बहुत हाथ खड़ा कर रहे हैं। कौन? ये इनके लिए कौन सा मसाज है? ये वाले, इनको भी मसाज चाहिए। आपको मसाज चाहिए? हाँ। अकेले आए हो ना? वाइफ नहीं आई लगता है। देखो, आइए 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 आइए, आपका मसाज मस्त होगा। कौन सा मसाज इनके लिए? अरे पहले पूछे तो क्या नाम है इनका? क्या करते हैं अबे? हाँ, पीते हैं सिर्फ? नहीं, अभी तो पी रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगे, हैंडसम है बहुत। आप आओ, आपको मैं हमारे पास अफगान जलेबी मसाज है। बहुत बढ़िया मसाज है, करवाओ। अफगान जलेबी, हाँ। इसमें क्या रहता है, कस्टमर को हम लोग तेल लगाते हैं, हाँ। और फिर 2 अफगान को बुलाते हैं। फिर वो इतना प्रेशर देते हैं सब पेट के ऊपर कि कस्टमर का जलेबी बाहर आ जाता है। आपको तो वही दूंगी मैं। क्या बात है यार, इधर सब लोग के हाथ में ग्लास है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। अरे बरेली में आई है तो बरेली की बात कर। क्या अरे तू इधर? बरेली की क्या, मैं एक शायरी सुनाना चाहेगी आप लोग हाँ, को। हाँ। वाह वाह, इन सबको देख के क्या बात है। ना सोने आए हैं, वाह वाह। ना सोने आए हैं, ना रोने आए हैं, इधर सब लोग टून होने आए हैं। मेरे को तो ऐसे ऐसे लग रहा है। और सबको अगर का पीने के बाद कुछ हो भी गया तो धोने भी नहीं आए हैं। नहीं नहीं, लेकिन जो भी है, बरेली मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। बरेली के लोगों की सूरत बड़ी प्यारी है। वाह। बरेली के लोगों की सूरत बड़ी प्यारी है, और हमें भी अच्छी सूरत पर मर मिटने की बीमारी है। आहा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। अरे तू इधर आए, तू कब पहली बार आया क्या बरेली? हाँ, हाँ। अरे इधर प्लॉट व्लीट ले ले। क्यों? पल पल में रेट बढ़ रहे इधर प्लॉट के। क्या बात है, कितने का है? इधर 1 बीघा लेगा तेरे को मिलेगा कोई 70 लाख में। कितने का? 1 करोड़ में। अभी तूने 70 बोला। बोला ना, पल पल में रेट बढ़ रहे हैं। कैसा है रे तू, तेरे को मालूम नहीं क्या? अबे बरेली की बात कर, तू कहाँ प्लॉट वॉट की बात कर रही है? अरे वो इधर बरेली बहुत फेमस है ना, उसके लिए वो झुमका गिरा रे। हाँ। बरेली के बाजार में। अरे लेकिन मैं तो बाजार गई थी अभी कल। तो हाँ, लेकिन मेरा झुमका गिरा नहीं। मतलब? घुमा नहीं मेरा झुमका। नहीं घुमा? हाँ। क्यों? कि झुमके के साथ ही गिरी थी ना मैं ऐसे।
और मेरा तो 2000 का फायदा हुआ। कैसे? 2000 का नोट देख के मैं ऐसे उस पे गिरी थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, पैसा भी मिला मेरे को। सपना शर्म नहीं आती 2-2 हज़ार के लिए तू गिरती फिरती है? अच्छा मैं 2000 के लिए गिरती तो है? और क्या? तू भिखारी टाइप मेरे को काय को बोल रहा है? ये बहुत बड़ी भिखारी फैमिली से मालूम है। ये हम लोग गंगा नदी रहते हैं ना, ऊपर वो ट्रेन जाती है, लोग 50-50 पैसे का सिक्का फेंकते हैं, इसकी फैमिली नीचे ही बैठी होती है, पानी में गिरने से पहले वो 50 का सिक्का ऐसे कैच कर लेती है। ये फैमिली से मेरे को बोल रहा है तू? खैर सुन ना, इधर इतने बड़े बड़े लोग आए ले। मैं ना वो उनसे मिलने आई है, घनश्याम जी से। अबे धन श्याम नहीं, घन श्याम है वो। नहीं नहीं, जितना पैसा उनके पास है वो घनश्याम ही है। मैं तो बोलता हूँ बाबा, मेरे को कुछ हो जाता है, बोलती है, मेरे को समझ में नहीं आता मैम। मैं तो बोलती हूँ सर घनश्याम जी, नाम घनश्याम जी रख लो अभी। हाँ। अरे बहुत बड़े आदमी, तेरे को मालूम है? अच्छा? अरे इतने बड़े आदमी, इनके घर लंगड़ा आम भी व्हील चेयर पे आता है। हाँ मैं इतने सच्ची भी? बोलती है। हाँ? अरे घनश्याम जी जब, किधर है घनश्याम जी, किधर गए क्या? इधर बैठे, किधर तो बैठे ले वो देखो, हाँ उधर है। हाँ। हाँ अरे ये है। इतने बड़े आदमी, एटीएम मशीन में कार्ड डालते हैं ना, तो मशीन हाथ जोड़ देती है, बोलती है सर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम कोने में थोड़ी पड़े रहते। मेरे को याद है घनश्याम जी, आपके बारे में सुना था मैंने, जब ये पहली बार बैंक में अकाउंट खोलने गए थे ना, हाँ? उन लोगों ने इनका रिकॉर्ड चेक किया। हाँ। उन्होंने बोला सर आप अकाउंट मत खोलो, हाँ? आप खुद का बैंक खोलो। लेकिन सर थैंक यू वेरी मच, बरेली जैसे छोटे से शहर में इतना सजाया आपने, सही छोटा बात सा है। लंदन लग रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल, इनके लिए जोरदार ताली। जोरदार। पीछे से उनके पीछे बच्चन साहब भी उठे। हाँ वाह, हाँ जी, आप लोगों ने बड़ा कर दिया सर। अरे नहीं, अरे नहीं सर, आप लोगों ने बड़ा किया कि हम लोग सर- को बुलाए ला इधर। आप घनश्याम जी, नाला सोपर में आपको अलग अलग टाइप का मसाज देगी मैं। अरे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक बार जोरदार ताली हो जाए यार। क्या बात है। बट मेरे को आपका सिस्टम बहुत अच्छा लगा सर। हम लोग का क्या है, हम लोग के डीजे बंद कर, उधर कौन है उधर? नहीं नहीं, तेरा मुजरा देखने आए हैं। है वो बकवास लेकिन आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। अभी क्या मैम, हम लोग के पास पैसे आते हैं, फिर हम लोग दाल खरीदते, चावल खरीदते, अचार खरीदते, मुरब्बा खरीदते हैं। आप लोग का उल्टा है, आपके पास पहले दाल आती है, मुरब्बा आता है, अचार आता है, उसके बाद पैसा ही पैसा पैसा पैसा। लेकिन गॉड ब्लेस, भगवान करे ऐसे ही चलता रहे पूरी जिंदगी। अच्छा पंच लगाना। हाँ। आपके फ्रेंड लोग खड़े होके ताली बजाए। थैंक यू। आ जाना। तू क्या है, किधर है, क्या बोल रहा था? पता है इसके पास नहीं आने का, कोला लड़का देख के पकड़ लेती है। ये इससे ज्यादा कोला किधर मिलेगा रे? मेरे को अच्छा अच्छा इसका लगा। मुंह देखो कितना तीखा ना। ये इधर इतना थोड़ा थोड़ा क्या रह गया है? इतना ऐसे ही रह गया कि पूरा पैसा नहीं था शेव कराने का। खैर लेकिन मैं कहना चाहूंगा, तू सपना शादी वादी कर ले, अब बरेली में आई है, सेटल हो जा, इतने हाँ। अमीर लोग हैं इधर। मेरा सच्ची में मैंने मैं इधर मैम एक्चुअली आई है, मेरे को शादी मनाने का है। हाँ हाँ किससे करनी शादी बोल। मेरे को घनश्याम जी से। क्यों करनी तुझे घनश्याम जी से शादी? अरे उनके पास आटा है, दाल है, चावल है, अचार है, मुरब्बा है, तेल है, इतना राशन है, तो जरूरत तो लगेगी ना उनको। तो जो एक घर वाली ऑलरेडी हैं, तुम्हें क्या लगता है आशीष उन्होंने गूगल से डाउनलोड किया है? अच्छा मैडम है ना? हाँ हाँ वो बैठे हैं सामने, कोई बात नहीं, मैं और आंटी मिलके एडजस्ट कर लेंगे। वो एडजस्ट कर लेंगे। तुझे पता है अपना मुंह देख, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी रखी है। अपना मुंह देख, सुस्त चुड़ैल की बच्ची। तो और क्या? सुस्त चुड़ैल क्या होता है रे? जो शेव करके नहीं आती। तू वाह, तो मैं नहीं हूं, मैं ऐसे जोर लगा रहा अरे हूं। वो स्टार लोग का ब्रांड एम्बेसिडर बनाते रे। सुना तूने? हाँ उन्होंने बोला कृष्णा भाई ब्रांड साहब, एम्बेसिडर अगर रहेगा। अगर मैडम ना बैठे होते तो उन्होंने ये शिल्पा शेट्टी कवर थोड़ी करनी थी।
वो तो मैडम बैठे हुए, शिल्पा शेट्टी कवर करनी पड़ गई सर। लेकिन एक बात बताइए, एक तरफ आपने शिल्पा शेट्टी रखी, उस पे इतना बोझ डाला है, दाल तुझे बेचनी, चावल तुझे बेचना है, अचार तुझे बेचना है, मुरब्बा बेचना है, उधर तेल बेचने के लिए 3-3 बंदे रखे, ऐसा क्यों? मैं सच्ची, मैं लेकिन ना मैं आपकी दाद देती हूँ घनश्याम जी, तेल मैं बेचने एक के चीज लिए की आपकी दाद देती हूँ। मसाज के लिए 3 बंदे कराने के चाहिए। लिए। अच्छा, वो ऐड करते हैं ना, कभी कभी लगता है तेल भी खुद निकालते होंगे। मैं से हाँ, परफेक्ट लेकिन- बंदे लिए आप लोगों ने। लेकिन एक बात बताऊं आपको सच्ची में, आप एक तरफ नवाज भाई, पंकज जी, मनोज जी को खड़े कर दो, एक तरफ शिल्पा शेट्टी, ये सारे मर्दों ने शिल्पा शेट्टी की तरफ जाना है, और इनके पीछे औरतों ने भी। पूछो क्यों? कौन मर्द? तेरा काम खराब है भाई। मेरा अच्छा है बाबा, मैं जब मर्द बन के आएगी हाँ। तो सब मेरे पीछे, औरत बन के आएगी तो भी मेरे पीछे। नहीं, लेकिन सर, गॉड ब्लेस यू। बहुत, ये जो इस धंधे में से इतना बड़ा नाम करना, ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। और उसका नाम उसी तरह बनाए रखना, कोल्लू बैल, क्या बात है, मतलब उसको बनाए रखना नाम को। वरना लोग होते हैं नए नए ब्रांड, पता नहीं कोई और ही नाम रख लेते हैं, अपना संस्कृति छोड़ के, अपना विचारधारा छोड़ के, उन चीजों को छोड़ के। सर, गॉड ब्लेस यू, इट्स रियली रियली ग्रेट एफर्ट, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन आपको देख के मैं भी बिजनेस शुरू कर रही है अभी। कौन सा? मैं भी बम्बई में परसों का तेल बेचती अबे हूँ। परसों का नहीं होता, सरसों का तेल होता है। वो तो ये सर बेचते हैं ना सरसों का, मैं परसों का ही बेचती हूँ। कैसे? मैं पहले 2 दिन भजिया तलती है तेल में, फिर भजिया बेचती है, और 2 दिन तेल पुराना हो जाता है वो भी बेच देती, डबल फायदा है उसके। उनको आइडिया देके जा रही है गलत गलत, ये आइडिया अच्छा है। और ये तेल बेचती भी नहीं है, आपको पता है, शनिवार को ना डोल लेके जाती है घर घर में, वो शनि के नाम पे तेल इकट्ठा करती है, उसमें से भजिया निकालती है। अच्छा, तू यार मेरे को सेटल करना बाबा इधर। हाँ, किससे शादी करनी बता? तू बार बार ऐसा ऐसा क्या करता है रे? मैं हूं। सबसे ज्यादा ब्लैक लेबल तूने खत्म किया उधर, मेरे को मालूम है तेरा। हाँ, ब्लैक डॉग, देख लो, पहले ब्लैक डॉग पीनी है, बाद में काला कुत्ता। नहीं नहीं बाबा, व्हाइट कुत्ता। ये देखो, पी के भी मतलब हरकतें भी वैसी आ रही हैं। मेरे को आपको देख के वो पुराना गाना याद है, पुराना गाना था ना, सुन साहिबा सुन। हाँ। ये टून बाबा टून है। अच्छा, इससे शादी बिल्कुल नहीं करना। काय को? क्योंकि 7 बजे इसने पी के टून हो जाना, तू तो 8 बजे के बाद क्या करेगी? हाँ, ये भी सही बात है। अच्छा, मेरे को कोई क्रिकेटर से शादी करवाना, किससे? ठाकुर। मेरे को हरभजन सिंह। तो एक काम कर, पहले तू सच में ही घनश्याम जी से शादी कर, फिर तलाक दे दे। काय को? वो स्पिनर है ना, उसको नई बॉल रास ही नहीं आती। अच्छा, तो फिर मेरे को धोनी से शादी करवा। धोनी से बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करता, विकेट के पीछे बैठ के बोलता है कम ऑन यू कैन डू इट। अच्छा, हाँ। तो फिर युवराज सिंह। नहीं नहीं, उससे नहीं। काय एक को? ओवर में 6-6 छक्के मारता है। सचिन तेंदुलकर। नहीं, उससे नहीं करनी। काय को? सुहाग रात में दरवाजे पे कुंडी ना लगी तो कोई नहीं, मैं लगा दूंगी यार, उसमें क्या है। अच्छा, तो फिर किससे कर? सलमान खान से करवा दे, उससे हमारा नहीं। तो प्रोड्यूसर है। नहीं नहीं, सलमान से नहीं, वो करता ही नहीं है भाई, करता ही नहीं है, नहीं करता। पता क्यों? बता पूछूं? देखो, जिसको बाहर खाने को दही मिल रहा हो, वो घर में भैंस क्यों बांधेगा? क्या बकवास कर रहे हैं? तो फिर किससे करवाएगा? मैं बताऊं? हाँ, आपकी अदालत के रजत शर्मा ना, उनसे कर ले। रजत शर्मा जी से? हाँ। नहीं बाबा। क्यों? उन्होंने सुहाग रात पे इल्जाम लगा देने हैं, और मैंने मान भी जाना है, मेरा पहली रात तलाक हो जाएगा। रजत शर्मा नहीं बाबा। केजरीवाल साहब से कर ले। केजरीवाल जी से? नहीं नहीं। क्यों? अरे, उन्होंने सुहाग रात पे धरना लगा दिया, तो इतने सारे लोग तो किससे करनी शादी? मेरे को इधर ही देखना कोई। इधर ही देखूं? हाँ। ये बॉडी बिल्डर से कर ले। देख देख, तेरे ही साइज का है। कभी अपनी ड्रेस उसको पहनाना, कभी उसकी तू पहन लेना।
नहीं लेकिन इसके लिए ना वजन कम करना पड़ेगा रे। क्यों? ये वजन कम करने के लिए क्या करे रे? तू बता क्या कर सकती है? क्या दौड़ना करूं? पड़ेगा, एक्सरसाइज। क्या एक्सरसाइज को गेम खेला कर। खेलने का है? हाँ। हाँ, तो मैं 4 साल से खेल रही, आज तक दुबली नहीं हुई। क्या खेल रही है? पत्ते। एक काम हो सकता है, क्या? पत्ते खेला कर पैसे लगा के, जब पुलिस का छापा पड़ेगा दौड़ेगी तो तू पतली हो जाएगी। बकवास। अच्छा मेरे को ना जम नहीं रहा कोई, मेरे को घनश्याम जी बार बार देख रहे हैं फूल के पीछे से मेरे को वही अच्छे लगे। वही अच्छे लगे हैं? है ना, उनके दोस्त भी बोल रहे हैं ऐसा ऐसा करते हैं। नहीं नहीं, उनके दोस्तों को तो पार्टी करनी है। उनका क्या है, किसी की इज्जत जाती जाए, उनको तो दारू पीनी है। नहीं लेकिन मेरे को कुछ करवाना है यार। कुछ करवा मतलब घनश्याम जी से बात करवा, मेरे को वही अच्छे लगे। अच्छा, मैं ऐसा उनके से, वो बड़े बिजनेसमैन है, कोई बात नहीं, मेरे को भी नॉलेज बहुत है, ऐसा कुछ नहीं। क्या बात कर रही है? हाँ। अच्छा, अभी इसकी नॉलेज चेक कर लेते हैं, ठीक है? बता, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? रात में हुआ। अबे मतलब सन सन नहीं था ना, मून था, रात में हुआ ना? अबे डे कौन सा था? ड्राई डे था। इसकी नॉलेज का कुछ, ओए जर्नल नॉलेज है, जर्नल नॉलेज तेरे को? हाँ, ये बता, गंगा कहाँ बहती है? गंगा कहाँ बहती है? हाँ मेरे को मालूम है। कहाँ? जमीन पे बहती है। अबे नक्शे पे कहाँ बहती है? अबे नक्शे पे बहेगी तो नक्शा भीग नहीं जाएगा क्या? कैसी बात कर रहा है तू? पगलेट है क्या? पागल है तू? हाँ। तो फिर उसे एंकर से शादी कर ले, देखा ना चिकना कौला आया था। नहीं नहीं, मेरे को ऐसे लोग नहीं पसंद है। नहीं है? हाँ, मेरे को घनश्याम जी अच्छे लगे। अच्छा फिर बता, तेरे को अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी हाँ आती है सर, लेकिन आती है कभी कभी ऐसे आती है और इधर से चली जाती है। वो हमारे घर पे क्रॉस वेंटिलेशन है ना, तो ऐसा निकल जाती है। उनका ना धंधा बहुत बड़ा है, तो कंप्यूटर चलाना आता है? आता नहीं है, लेकिन कोई आगे बैठ के चलाए तो मैं पीछे बैठ सकती हूँ। तेरे बाप का स्कूटर है वो? तेरे को इसको कुछ नहीं आता सर? आपको करनी है इससे शादी सर? कोई है ऑप्शन? और देख तेरे को कैसा इग्नोर किया उन्होंने। देख, किसी से हाथ मिलाने के लिए तेरे को इग्नोर कर दिया। देख मेरे को प्रणाम किया उन्होंने। प्रणाम नहीं किया, हाथ जोड़े दफा हो। ये प्रणाम थोड़ी होता है ऐसे चल निकल, ये बोला है। ऐसा बोला घनश्याम जी? नहीं ना। हाँ, प्रणाम किया ना उन्होंने। तेरे को। क्या बात है यार घनश्याम जी, आप भी पंच मारते हो, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलो, क्या बात है, आपको मैं सच्ची बताऊं मैंने कैरेक्टर छोड़ दिया आपके चक्कर में कैरेक्टर लेस हो गई है सपना। नहीं लेकिन एक बात है, हम लोग इतने शो करते हैं, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं इसलिए एज कृष्णा ही आ गया, हमें शो पे भी कभी कभी ऐसे बोल देता हूँ। इतने शोज करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, लेकिन हाजिर जवाबी, मतलब आपकी कपिल से कम नहीं, आप तो हर बात पे जवाब दे रहे हो। घनश्याम जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार, फैंटास्टिक यार। अच्छा हुआ so आप good। इधर सच में तेल बेच रहे हो, अगर हमारी लाइन में आ जाते हमारे हम तेल लग बेच जाते रहे होते। थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू सो मच। आपने जितने प्यार से बुलाया उतने प्यार से सुना, वरना मैंने बताया ना अमीर लोग बुला लेते सुनते नहीं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू बरेली। थैंक यू। आना कभी बम्बे में मसाज मिलेगा। हाँ? अलग तेरे को तो नहीं बाबा, तू बहुत पीला है। Ladies and gentlemen, give it up for Sapna and Rajiv Thakur, everybody. And now, ladies and gentlemen, we are going to present our next performance. हमारी अगली performance जो है वो हम सभी से रिलेटेड है। बढ़ते कदम, जैसे कि हमारे BL एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की बढ़ती हुई कदम जो है वो Company आज anthem है। बिल्कुल आज यहाँ तक पहुँच गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ हमारी अगली परफॉर्मेंस जो है वो हमारे डांस परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं डांस परफॉर्मर्स बढ़ते कदम एंथम के साथ। बढ़ते कदम कंपनी एंथम के साथ ये डांस परफॉर्मेंस होने जा रही है। Please put your hands together and welcome the Fireball with company's anthem बढ़ते कदम।
Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome the fireball बढ़ते कदम। जज्बे से भरे हम रोके न रुके हम, जोश से भरे हम रोके न रुके हम, जुनून से डटे हम रोके न रुके हम, जुनून से डटे हम रोके न रुके हम, जिद से जीतेंगे हर दम हर दम हर दम। बढ़ते कदम 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 बढ़ते कदम। रग रग मेरा वाणी है, रग रग मेरा वाणी है, नई ये कहानी है, नई ये कहानी है, पग पग ने जो ठानी है, पग पग ने जो ठानी है, मुश्किल ये मिटानी है, मुश्किल ये मिटानी है। देखो देखो इन कदमों को थक 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 थकते नहीं, थम 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 थमते नहीं, लाख ठोकरे लेकिन रुक रुक के रुकते नहीं, रुक रुक के रुकते नहीं, चले सीना तान के आन बान शान से, मुश्किलों को मिट्टी मिट्टी कर देते हम जान से, कर देते हम जान से, कर देते हम जान से। शेरों सी है दहाड़ हमने भरी हुंकार, शेरों सी है दहाड़ हमने भरी हुंकार, जज्बे की है भरमार है जीत की ललकार, जज्बे की है भरमार है जीत की ललकार, जिद से जीतेंगे हर दम हर दम हर दम। Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी। भाई दिल से तालियां होनी चाहिए बढ़ते कदम के लिए। Ladies and gentlemen,